Hello students, welcome back to my next video lecture, and in this video lecture we will discuss Bohr model. Bohr model is applicable to hydrogen atom and hydrogen like species. What do you mean by hydrogen like species? Those species in which there is only one electron in them. For example, helium plus ion. Okay, as we know that helium में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? There are two electrons in helium. Okay, but after losing one electron out of it, it will become hydrogen like species. All those species which are having one electron are called as the hydrogen like species, and Bohr model successfully explain structure of these kind of species. Okay, now come to the postulates of Bohr model. First postulate is an atom consists of a small, heavy, positively charged nucleus in center, and the electron revolve around it in circular orbits. ओके ये तो बोहर और रदरफोर्ड सेम ही हो गया. ठीक है. सेकेंड, electron revolve only in those orbits which have fixed value of energy. Hence these orbits are called as the energy levels or stationary levels. Means if electron is assigned this orbit, first orbit, then electron will keep on revolving in this orbit, and if electron is assigned second orbit by default, then it will keep on revolving in this orbit. Okay, and this orbit have fixed energy. Okay, for let it be y. This orbit also have fixed energy, let it be x. Okay, and so that's why these orbits are called as the energy levels or also called as the stationary states. Okay, and for example, and the numbers 1 2 3, for example, for first orbit number n equal to 1 is given, for second orbit n equal to 2 is given, for third orbit n equal to 3 is the number given. Okay, and these numbers are called as the principal quantum numbers. Okay, now there are some expression which we will discuss now. First of all, energy of an electron in a shell, or you can say expression for calculating energy of the shell, or you can say orbit. Okay, how we calculate energy of orbit? This is the formula. Okay, the energy of nth orbit is equal to minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square by n square joule per atom. What is z? Z is atomic number, and what is n? N is the number of orbit which you are talking about. Okay, for example, this is the for this orbit n equal to 1, first orbit, for this orbit n equal to 2, and if you are talking about hydrogen, for hydrogen z equal to 1, and if you talk about hydrogen like species like helium plus 1, for this z equal to 2. If you talk about lithium plus 2, this is also hydrogen like, because lithium is having 3 electron and it gained plus 2 by losing 2 electron, so it means it has only 1 electron in it, so it is a hydrogen like species and it is having z equal to 3. So energy of nth orbit in hydrogen and hydrogen like species will be calculated by this formula. Okay, and the electron present in a particular orbit will have same energy as that of the shell. That's why it is residing inside of this orbit. If this shell is having energy x, it means this electron is also having energy x. So that's why it is residing inside of this orbit. Okay, this is obvious. So energy of nth orbit is having calculated by this formula. You have to put value of z, z is atomic number, and you have to put value of n. N is the number of shell or number of the orbit which you are talking about. You are talking about first orbit or second or third. Okay, and the units comes out to be joule per atom. Okay, but if you want to calculate energy in terms of kilojoule per mole, then at that time you have formula this minus 1312 z square by n square
kilojoule per mole. Z is same atomic number, N is number of the orbit. But if you want to calculate in terms of kilojoule per mole, then you have to apply this formula. And these two formulas are interconvertible. Means if you here convert kilojoule per mole to joule per atom, means you convert kilojoule to joule. Okay, means kilojoule to joule कैसे convert करोगे? By multiplying with 1000. 1 kilojoule is equal to 1000 joule. और mole means 6.022 into 10⁻23 एटम्स. तो जब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे, किलो जाउल को जाउल कन्वर्ट करोगे, मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर दोगे, देन एट दैट टाइम ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो ये दोनों फार्मूला सेम है, बस ये है कि इसके केस में यूनिट डिफरेंट है और इसके केस में यूनिट डिफरेंट है. तो दैट्स वाई ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये चेंज हो जाती है. ओके, नाउ डेजिग्नेशन हमें पता है फॉर हाइड्रोजन जो फर्स्ट शेल है जिसके लिए n इक्वल टू 1 होता है, दैट इज कॉल्ड एज द K, सेकेंड शेल L, थर्ड M, फोर्थ N, फिफ्थ O एंड सो ऑन. These are the designations given to the shells. Okay, next is radii of the stationary states or you can say shells. मतलब ये जो first shell है, ये जो second shell है, we know that shells are circular orbits. Okay, so what is the radius of this circle? Okay, let us say this is R1, let us say this is R2. Okay, this is called as the radius of the shells. Okay, clear? And to calculate this radius we have also the formula, and this formula is radius of nth orbit is equal to 52.9 into n square by z. N is the number of shell which you are talking about and z is the atomic number. Okay, atomic number of the hydrogen or hydrogen like species. Okay, and answer will come out in picometer. Okay, and remember that 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 12 meter. Okay, that's it. ठीक, और for z equal to 1 and n equal to 1, z equal to 1 मतलब हाइड्रोजन एटम you are talking about, और n equal to 1 मतलब हाइड्रोजन एटम में जो फर्स्ट शेल है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसमें होता ही एक इलेक्ट्रॉन है. तो आप अगर फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल का कितना रेडियस है हाइड्रोजन के केस में, अगर वो निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालोगे? n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, z इक्वल टू 1 पुट कर दोगे इस फार्मूला में, देन यू विल गेट वैल्यू 52.9 पिकोमीटर. इट मीन्स 52.9 पिकोमीटर जो होती है वो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की रेडियस होती है, और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द बोहर ऑर्बिट. ओके, नाउ सी वेलोसिटीज. How you calculate velocity of an electron in the different orbits or you can say different states. This is also having formula. Velocity of electron in the nth orbit is equal to 2.188 into 10 raised to power 6 z by n meter per second. That is again atomic number depending upon which species you are talking about, hydrogen, helium plus 1, lithium plus 2 or beryllium plus 3, and n is the number of the shell which you are talking about, because electron will have different speed in first shell, have different speed in second shell if it is in second shell, and same for the third shell and so on. Okay, so these are the some formulas. These formulas you have to keep in your mind because these formulas are applicable in numericals, और numericals में आपने ये करना है. ठीक है, क्लियर? इसके numericals आएंगे, you have to memorize these formulas. Okay, third, since the electron revolve only in those orbits which have fixed value of energy, hence electrons in an atom can have only certain values, certain definite values of energy, not any of their own. Thus energy of an electron is quantized. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी कुछ एनर्जी होगी x, सेकेंड ऑर्बिट है उसकी कुछ एनर्जी होगी y, थर्ड ऑर्बिट है उसकी कुछ एनर्जी होगी z. इलेक्ट्रॉन या तो इस ऑर्बिट में होगा या इस ऑर्बिट में होगा या इस ऑर्बिट में होगा, मीन्स वो किसी ना किसी ऑर्बिट में ही होगा. ये नहीं होगा कि दो ऑर्बिट के इन बिटवीन यहाँ पे स्टे कर रहा है, यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता. ठीक, तो यहाँ से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू है, ओके, दैट कैन नॉट बी एनी नंबर. ओके, दैट कैन ऑलवेज बी इक्वल टू energy of any shell. Okay, maybe it's first, second shell or third shell depending upon in which cell
इट इज़ रिजाइडिंग। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती, इट मीन्स उसकी कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस शेल में जा रहा है, सो दैट्स वाई। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती, हम ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं कि दीज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज दी क्वांटाइज्ड। मतलब नॉट एनी वैल्यू एग्जिस्ट, ओनली अ सर्टेन वैल्यूज एग्जिस्ट। जैसे अगर मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें, सेट ऑफ होल नंबर, तो वो 1 0 1 2 3 4 5। ओके, होल नंबर इज़ क्वांटाइज्ड, क्योंकि होल नंबर में क्या होगा, 0.1 नहीं आता होल नंबर में, 0.5 नहीं आता होल नंबर में। ओके, दीज नॉट कम इन होल नंबर्स। ओके, क्लियर, मीन्स ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिनमें कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ ही एग्जिस्ट कर सकती हों, उन क्वांटिटीज़ को हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और सिमिलरली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटम्स इज़ क्वांटाइज्ड, कुछ एक सर्टेन वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। ओके, फोर्थ, like energy, the angular momentum of an electron in an atom can have certain definite values, not any value of their own. सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज द मोमेंटम। ओके, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमें पता है इन केस ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग इन दी सर्कुलर पाथ्स विच आर कॉल्ड एज दी ऑर्बिट्स। ओके, क्लियर। तो इट मीन्स इनके केस में क्या होता है, सर्कुलर पाथ के केस में जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, तो हम उसकी बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी नहीं बोलते, उस टाइम हम बोलते हैं किसकी, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द आर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, क्लियर, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो मास मल्टीप्लाई बाय द एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। दिस यू मे बी स्टडी इन फिजिक्स इन डिटेल। ओके, बट जितना अभी रिक्वायर्ड था वो मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an atom is also quantized. Okay, and angular momentum will always be equal to nh by 2 pi, where is n is equal to number of shell in which the electron reside, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही उसका एंगुलर मोमेंटम डिसाइड होगा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड 2 पाई तो आपको पता है 2 पाई 3.14। ठीक है, दिस इज इट। फिफ्थ, an electron does not lose or gain energy when it is present in its own shell. Okay, it means अगर आपके पास कोई, मान लो आपके पास, हालांकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता बोहर मॉडल, पर मान लेते हैं कि उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है सेकेंड शेल में, उसको सेकेंड ही डेजिग्नेट हुआ है बाय नेचर, तो अगर वो सेकेंड में ही रहेगा तो उस टाइम क्या होगा, ना तो वो इस ऑर्बिट में जितना मर्जी घूमता रहे, वो इस ऑर्बिट में घूमने के दौरान ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक ये अपने शेल में प्रेजेंट है। एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन कब करेगा, अगर मान लो बाहर से कोई एनर्जी आई और ये इसने गेन कर ली, तो ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। ओके, और अगर ये मान लो अपने ऑर्बिट से जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट में आ गया, किसी अंदर वाले ऑर्बिट में आ गया, उस टाइम क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज कब करते हैं, जब वो अपने ऑर्बिट से किसी अंदर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं। और एनर्जी गेन कब करते हैं, जब वो अपने ऑर्बिट से किसी बाहर वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं, तभी वो एनर्जी गेन करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। कैसे पता लग रहा है, इस फॉर्मूला से। ठीक है, जैसे जैसे n बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जैसे जैसे n बढ़ेगा, एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में कम होगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है ना साइन में, फॉर्मूले में पहले साइन नेगेटिव लगा हुआ इस साइड। तो नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव होना, और पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव होना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। तो इट मीन्स जो न्यूक्लियस के करीब होंगे, जिनके लिए n छोटा होता है,
उन शेल्स की एनर्जी लेस होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर होंगे उनके लिए एन बड़ा होगा, तो एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी मतलब। ठीक है, मतलब उनकी एनर्जी हाई होती है। क्लियर? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, देन बाय गेनिंग दैट एनर्जी इट जंप्स टू द आउटर ऑर्बिट। और अगर आउटर ऑर्बिट से इनर जंप करना है तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी ली है उसको दोबारा इसको रिलीज करना पड़ेगा, और जब भी एनर्जी रिलीज करेगा तो इन फॉर्म ऑफ लाइट करेगा, या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ लाइट, और सॉरी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगले पॉइंट में यही बताया हुआ है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी it gets excited to the higher energy level, and when it de-excites it loses energy in form of electromagnetic radiations and comes to the lower values. Okay, and that's it with the Bohr model. Now comes to the usefulness of Bohr model. Okay, कि how, where the Bohr model is used, how you can utilize the Bohr model, its merits. You can also call this topic as merits of Bohr model. First of all, this model is capable to explain stability of atom. Okay, which was the drawback of Planck's quantum, sorry, which was the drawback of Rutherford model. According to Bohr theory, an electron cannot lose energy as long as it stays in the particular orbit. Okay, clear? बट जैसे आपने बोला था, हमने बोला था कि आपके पास जो रदरफोर्ड मॉडल के केस में उसने भी यही बोला था कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, बट उस टाइम मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सवेल ने एक थ्योरी दे रखी थी कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट कीप ऑन रेडिएटिंग इट्स एनर्जी। अगर ये चार्ज पार्ट इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ पड़ा है, उस फील्ड में मूव भी कर रहा है। तो मैक्सवेल के केस में मैक्सवेल का अगर लॉ सच है, जो कि सच था, मैक्सवेल ने प्रूव किया हुआ था, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन रिवॉल्विंग, and when it keep on revolving it will radiate energy. Okay, अगर रेडिएट एनर्जी करेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा। यही तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की। अदरवाइज रदरफोर्ड मॉडल में और बोहर के मॉडल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बट बोहर ने क्या बोला, बोहर ने बोला कि अगर ऑर्बिट अपने अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में लूज रोटेट करेगा, एट दैट टाइम उस ऑर्बिट के अंदर जब तक वो रोटेट कर रहा है तब तक उसमें उसके ऊपर मैक्सवेल लॉ नहीं लगता। उसने मैक्सवेल को भी यही समझाया कि तेरा लॉ वैसे फिजिकल वर्ल्ड के केस में लगता होगा, बट एटॉमिक लेवल पे तेरा लॉ ये नहीं लगता। ठीक है, तो इट मीन्स जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ओके, टिल देन इट इज़ नॉट गोइंग टू रेडिएट एनर्जी, चाहे वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस ही रोटेट क्यों नहीं कर रहा, दैट डजेंट मैटर। मतलब मैक्सवेल लॉ इज नॉट एप्लीकेबल एट न्यूक्लियर लेवल। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। उसने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को वेरी वेल एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन? देखो, हाइड्रोजन के केस में जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। मतलब कैसा? कुछ लाइंस, ठीक है, उसके एमिशन स्पेक्ट्रा में कुछ लाइंस होंगी, फिर थोड़ा सा गैप आएगा लाइक दिस, फिर एक बैंड ऑफ लाइंस, फिर गैप आएगा, फिर एक बैंड ऑफ लाइंस, फिर गैप आएगा, फिर एक बैंड ऑफ लाइंस, फिर गैप आएगा, लाइक दिस। ओके, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? और मतलब यही एक्सप्लेन किया था बोहर ने। कैसे एक्सप्लेन किया बोहर ने? बोहर ने बोला कि आपके पास मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ओके, और ये हाइड्रोजन के शेल्स हैं। ये फर्स्ट शेल है n इक्वल टू 1, ये सेकेंड शेल है n इक्वल टू 2, ये थर्ड शेल है ये n इक्वल टू 3, ये फोर्थ शेल है n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ओके, और शेल्स को यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे लाइन से दिखाया हुआ है। ये दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग shell, which shell I am talking about. Shell is circular,
बट यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन से दिखा दिया हुआ, सिंप्लीफाई किया हुआ। ठीक है, अब इसने लाइन स्पेक्ट्रा कैसे एक्सप्लेन किया, इसने बोला ये जो फर्स्ट सीरीज़ आ रही है ये क्यों आ रही है, जब इलेक्ट्रॉन, हालांकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब इलेक्ट्रॉन उसका फर्स्ट शेल से एक्साइट हो गया, मान लो फोर्थ में चला गया, ठीक है, एनर्जी बाहर से मिली और शुरू शुरू में एक्साइट हो गए, वो फोर्थ में चला गया, और जब ये फोर्थ से वापस फर्स्ट में आएगा उस टाइम एनर्जी रेडिएट भी करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी से अगर लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो जितनी एनर्जी उसने उसके पास एक्स्ट्रा होगी वो उसको छोड़नी पड़ेगी, और ये जो एनर्जी रेडिएट होगी इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग लाइन लाइन आप ऑब्जर्व करते हो स्पेक्ट्रा में। ठीक है, जैसे कलर्स जो आते हैं उनकी डिफरेंट कलर्स ऑफ द वाइट लाइट हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ्स, और अगर उनकी वेवलेंथ एंड मीन्स उनकी कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट वट इज रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इंटू न्यू इक्वल टू सी, तो न्यू कितना आ गया सी बाय लैम्डा, तो एच इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो ये रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में, मतलब हर कलर की अपनी एनर्जी भी होती है ना। ठीक, तो ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन आ जाती है स्पेक्ट्रा में। तो इसने बोला वेन एवर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइट होकर किसी और बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, लेट अस से सेकंड में गया या थर्ड में गया या फोर्थ में गया या फिफ्थ में गया या सिक्स्थ में गया या सेवन्थ में गया या हो सकता है एट्थ में गया हो। ठीक है, क्लियर। और वहाँ से जब वापस डायरेक्ट जंप लगाएगा फर्स्ट में, मतलब चाहे सेवन से फर्स्ट में आए, चाहे सिक्स से फर्स्ट में आए, चाहे फिफ्थ से फर्स्ट में आए, चाहे थर्ड से फर्स्ट में आए, चाहे सेकंड से फर्स्ट में आए, मतलब आना उसने अल्टीमेटली n इक्वल टू वन में है आउटर से। उस टाइम जितनी भी रेडिएशन एमिट होती हैं उनका ये वाला बैंड है, फर्स्ट वाला जो बैंड आ रहा है, और इस बैंड को नाम दिया उन्होंने लेमन सीरीज। ओके, और कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉन आउटर से फर्स्ट में डायरेक्ट ना आके क्या करता है, वो कहता उसको लगता है कि मैंने सेकंड में जाना है शायद, तो जब आउटर से सेकंड में जाएगा किसी भी आउटर में से, एनी वन आउटर, एनी आउटर टू n इक्वल टू टू, उस टाइम जितनी भी यहाँ से जब मान लो सेवन से जब सेकंड में गया तो उस टाइम एनर्जी रेडिएट करेगा ना, या फोर्थ से सेकंड में गया उस टाइम भी एनर्जी रेडिएट करेगा। ये जितनी भी एनर्जी रेडिएट होती हैं जब n इक्वल टू टू में आता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर, ठीक है, उनके लिए एक बैंड बन जाता है, ये वाला बैंड। ठीक है, क्लियर। और इस बैंड को नाम दिया गया बाल्मर। जब आउटर टू थर्ड आता है उस बैंड को नाम दिया गया पैशन। जब आउटर टू फोर्थ आता है उसके लिए जो बैंड बनता है उसको भी बोला गया ब्रैकेट। जब आउटर टू फिफ्थ आता है उसके लिए बैंड जो बना उसके लिए नाम दिया गया पी फंड, और इसको कई फंड भी बोलते हैं। और कई बार क्या होता है जब आउटर टू सिक्स आता है, हालांकि ये इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, यही मेजरली ऑब्जर्व होती हैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में। बट एक और सीरीज़ होती है जिसको बोलते हैं हेम्फ्रे सीरीज़, यहाँ पे मैं स्पेलिंग एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा लिख के बता दूँ, हेम्फ्रे सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में क्या होता है आउटर से ये कब बनती है, जब n इक्वल टू सिक्स में जंप होती है आउटर से, ये सीरीज़ तब आती है। ठीक है, इसके लिए भी एक दो लाइंस यहाँ पे अपेयर हो जाती हैं। क्लियर। सो दीज आर द लाइंस, these are the bands which are observed, and why they are observed this is explained by the बोहर मॉडल, क्योंकि बोहर ने ही ये ऑर्बिट वाला कंसेप्ट दिया है और उसने ऑर्बिट से ही एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ को बोलते हैं लेमन सीरीज़, और ये यूवी रीजन में फॉल करती है, मतलब इनकी ये जो रेडिएशन आती है दे आर हैविंग हाई एनर्जी। ये जो सेकंड है जिसमें आउटर टू सेकंड आती है ट्रांसमिशन होती है, इस सीरीज़ को बोलते हैं बैल्मर सीरीज़, ये विजिबल रीजन में फॉल करती है। और ये बाकी ये वाली जो बची पैशन ब्रैकेट फंड या पी फंड बोल लो, दीज थ्री लाई इन दी आई आर रीजन, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर क्या है, यूवी रेडिएशन की एनर्जी सबसे हाई होती है, विजिबल की उससे कम होती है, और आईआर की इन तीनों में सबसे कम आईआर की ही है। ठीक है, और हेम्फ्रे सीरीज भी आईआर रीजन में ही लाई करती है। सो दिस इज द मेरिट्स ऑफ बोहर मॉडल, और यू कैन से यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल। ओके, सो नेक्स्ट इज limitations of Bohr model. Okay, so limitations of Bohr, in limitations of Bohr model, जो सबसे पहला ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए नहीं लगता। दूसरा, ये जो स्पेक्ट्रा है
स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट मान लो अगर हाइड्रोजन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्लियर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है हाइड्रोजन को, उसके बाद आपने इस हाइड्रोजन को एक्साइट करवाया, यू एक्साइटेड दिस हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद इससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनको नोट किया, वो रेडिएशंस का जो आपके पास स्पेक्ट्रा आया उस टाइम, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, उस टाइम उसका स्पेक्ट्रा इससे थोड़ा हटके आया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हाइड्रोजन को रख के उसको एक्साइट करवाया जाता है, ठीक है, उस टाइम उसका स्पेक्ट्रा इससे थोड़ा हटके आता है। ऐसा ही लगता है कि नई लाइन्स जनरेट होगी, जैसे लेमन में पहले मान लो 10 लाइनें आ रही हैं, उसकी 10 लाइनें नहीं आ रही हो, उस बारीक बारीक लाइनें आ रही होती हैं, टूट के 20 लाइनें आ रही होती हैं उस टाइम, और लाइन की जो ब्रॉड विड्थ है वो कम होके हाफ ऑफ हो चुकी होती है, मतलब स्प्लिटिंग हो जाती है लाइंस की। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, व्हेन यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे भी स्प्लिटिंग होती है ये वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे भी स्प्लिटिंग होती है ये वाली, ठीक है, स्पेक्ट्रा की जो लाइंस हैं वो स्प्लिट अप हो जाती हैं। ये जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको क्या, ये उसका रीज़न क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर मॉडल। ओके, क्लियर। एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द जीमन इफेक्ट। ये याद रखना तुम लोग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में एज इट इज़ पूछा जाता है कि व्हाट इज जीमन इफेक्ट। सिमिलरली स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द स्टार्क इफेक्ट। ओके, और दिस क्वेश्चन थर्ड पॉइंट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। जैसे जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स कैसे कौन है, हालांकि इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में जैसे वाटर आता है, क्लियर, वाटर की जो है वो शेप ऐसे होती है वी शेप, इसको ऐसे बना देता हूँ, क्लियर। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वाई दे हैव शेप, उनकी शेप ही क्यों होती है, उसका रीज़न बोहर मॉडल नहीं दे पाया। ही इज़ फेल्ड टू गिव द explanation of shapes of the covalent molecules, कि why covalent molecules have definite shape। जैसे वाटर की मैंने बोला वी शेप है, सिमिलरली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की लीनियर शेप है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2, और H2O उसकी वी शेप है, ठीक है, हालांकि दोनों में तीन तीन एटम ही है, क्लियर। इसका रीज़न क्या है, दिस इज नॉट एक्सप्लेन बाय दी बोहर, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद बाय दी बोहर मॉडल, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ओके, क्लियर। और एक ये क्वेश्चन भी बड़ा आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, या आप बोल लो कि लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई डज नेगेटिव एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम मीन्स, ठीक है। ये हमने एनर्जी ऑफ nth शेल के लिए जो एक्सप्रेशन निकाला था, इसमें ये नेगेटिव क्या डेजिग्नेट कर रहा है, ये नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ठीक। जब आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पे है, हम मानते हैं कि उस टाइम इसकी एनर्जी ज़ीरो है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता जाएगा, जितना ज़्यादा करीब आएगा उतना ज़्यादा बाउंड होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। और जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा इट मीन्स इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, इसकी तो पहले ज़ीरो थी। जब इन्फिनिटी पे था तब हमने इसकी एनर्जी ज़ीरो मानी है, जब ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास गया और उसके किसी शेल में फिट होना शुरू हुआ, तो वैसे वैसे क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता गया, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। बाउंड होना है न्यूक्लियस के साथ ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये बाउंड ही हो रहा है एक हिसाब से। तो इट मीन्स जो जीरो से भी इसकी एनर्जी ऑलरेडी जीरो और उसके बाद भी रेडिएट कर दी, तो अब इसकी नेगेटिव नहीं होगी। तो इट मीन्स इसलिए जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी नेगेटिव कंसिडर करी जाती है, इसलिए तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ पे ये नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द रीजन why hydrogen atom has negative energy, okay, clear. And this expression is Rydberg expression, clear. And Rydberg expression is also derived with the help of Bohr. This I will explain in the next lecture ki what is Rydberg expression and how it is explained by the Bohr, okay. This I will discuss in my next video. Till then you have to study Bohr model well, okay. Thank you students.